Today I am going to describe you about brain mapping techniques, and this is for the semester of MA to Physiological Psychology. Before going ahead, this is very important to know about the importance of brain mapping techniques. The brain measuring or mapping techniques are used to explore electrical activities, to show parts of the brain. It provides precise understanding of the anatomy and structure of the brain, and to explore the functions of different areas of the brain. This third objective is very important as the point of view of psychologists, because we as a psychologist are more concerned about to know which areas are responsible for different type of motivations, emotions, learning, memorization, etc. And it allows us to understand how a person learns, what happens to a hippocampus during memorization, what happens when a person behaves in a strange manner, why is he feeling hungry, thirsty, etc., and why after an accident a person loses his vision or memory, etc. So brain mapping technique tell us the mysteries behind our each and every behavior. ब्रेन मैपिंग से हमें स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एंड फंक्शन सब के बारे में पता चलता है. अगर if an individual is feeling hungry, why is he feeling hungry, which part of the brain is getting activated because of that the person is feeling hungry, और वो कौन सी चीज होती है जो हमें बताती है कि stop to eat. तो वो भी हमारे ब्रेन के एक्टिविटी सेंटर होते हैं. जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नाउ आई हैव टू स्टॉप ईटिंग. So, what are different areas of brain which are responsible for the eating behavior, thirst behavior, and different type of drives? So, there are various techniques of brain mapping, and they are used depending upon the purpose of measurement. And ये purpose कौन से हो सकते हैं कि हम electrical activity measure करना चाहते हैं, या हम brain के structure को measurement करना चाहते हैं, या we are concerned about measuring the functions of brain. Some of the main techniques are as follows. First is EEG, electroencephalograph. It is a method for measuring brain activity in which the electrical activity of brain is recorded from electrodes placed on a person's scalp. इसमें इंडिविजुअल के स्कैल्प पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स प्लान कर दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं. जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं. दीज ऑल आर इलेक्ट्रोड्स और ये ब्रेन में इम्प्लांट है और इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है. ईईजी रीडिंग इनकी यहाँ पे आ रही है. एंड दिस इज द कंप्यूटर and the process is doing as follows. इसके बाद there are different patterns of brain activity. First is beta activity, when a person is awake but he is involved in some type of mental activities. ये बहुत short intervals पे हैं. Alpha activity, when a person is awake but in resting position. Theta activity pattern, when a person is in sleeping mode. एंड डेल्टा एक्टिविटी व्हेन अ पर्सन इज इन डीप स्लीप. मतलब इस फिगर का मतलब ये है कि अगर आप डीप स्लीप की स्टेज में हैं और अगर आपका ईईजी किया जाएगा तो ब्रेन एक्टिविटीज इस टाइप से आएंगी. तो ये जो पैटर्न्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी हैं, दे ऑल डिफर अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ अवर ब्रेन. EEG is a better mapping device in showing when brain activity occurs, and it is not very accurate at indicating precisely where activity occurs. So, if we want to know where all these activities are occurring, so few other techniques are used to provide better spatial resolution than EEG. These are CT, MRI, and PET. Now, first we'll focus on CT, that is computerized tomography. This procedure uses X-rays to scan the patient's head from many different angles. A computer then produces a two-dimensional picture. This is just like the X-ray. जैसे हम X-ray कराते हैं हाथ का, पैर का, और वो हमारे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या जैसा हमारा स्ट्रक्चरल शेप है उसको एज इट इज प्रोड्यूस कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. तो एक्सरे में रेस के थ्रू हम ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि क्या क्या है, और इनमें हम बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड एमआरआई. पहले इसके लिए हम आपको एमआरआई बताते हैं. एमआरआई क्या होता है? एमआरआई इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. It is a brain mapping technique that uses magnetic field to produce detailed images of the structure of the brain and other soft tissues. ये
ईईजी में क्या होता है, उसमें रेडिएशन होता है, एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है, हमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट थ्रू एक्टिवेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ब्रेन. So MRI provides a static picture and is very useful for looking at structures and abnormalities in structure, such as when someone is injured, it does not tell anything about activity, just about structure. तो इसमें और ईईजी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ईईजी में हमें जो सॉरी सीटी स्कैन में हमें जो एक्सरे होता है, एक्सरे के फॉर्म में रेडिएशन उसमें ज़्यादा होता है, जबकि एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है. इसमें सिर्फ उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टिमुलेट करके हम उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सीटी एंड एमआरआई. The CT scan produces results much faster than MRI. It is the preferred choice for doctors when making a diagnosis in an emergency. तो अगर हमें जल्दी डायग्नोज करना होता है तो CT scan is the better option. CT scan is cheaper than MRI. CT scan produces radiation while MRI does not. MRI uses magnetism. So MRI is safer because radiation can be harmful if frequently exposed. And CT scan shows bones also while MRI does not. तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ brain mapping, we opt different type of techniques. So now going further, this is the procedure of MRI. ये MRI में इस टाइप के इमेजेस हमें मिलते हैं और ये उसकी मशीन है. इसमें जो इंडिविजुअल है इस मशीन के अंदर जाता है तब उसकी स्कैनिंग होती है और उसके बाद स्कैनिंग के बाद ये कंप्यूटराइज्ड फिगर इस टाइप से डिस्प्ले होती है. अब MRI का ही दूसरा वेरिएशन है विच इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल MRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. It is a variation of MRI. It is a brain imaging technique that uses magnetic fields to produce detailed images of activity in area of the brain and other soft tissues. इसका इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो इसके आगे F लग गया है, फंक्शनल. मतलब ये स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें ब्रेन एक्टिविटीज के फंक्शंस भी बताता है कि हाउ डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर different functions. Images from functional MRI tell us where activity in the brain is occurring during particular task by tracking blood oxygen used in brain tissues. मतलब इसमें ब्रेन के टिश्यूज कितनी ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जिन पार्ट्स में जितनी ज़्यादा हो रही है इसका मतलब ब्रेन के उन पार्ट्स में एक्टिविटी का लेवल हाई होगा. ये कुछ फंक्शनल MRI की पिक्चर्स हैं. जब हैप्पी मूड में इंसान होता है तो उसके जो ऑक्सीजन इनटेक के एरियाज हैं वो ये हैं. इनसे हमें ये पता चलता है पर्सन इज हैप्पी. और जब वो सैड होता है तो ऑक्सीजन इनटेक इन एरियाज में ज़्यादा होता है. तो दिस पिक्चर शो द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैड स्टेट ऑफ माइंड. अब ये जो फंक्शनल MRI जैसे हमने बताया ना कि ये मेंटल एक्टिवली जब इंडिविजुअल when individual is involved in different type of activities, for example he is learning something, for example he is manipulating something, तो उस टाइम में इंडिविजुअल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर टास्क एंड एट दैट पर्टिकुलर टास्क हिज ब्रेन इज बीइंग मॉनिटर्ड. जैसे इस समय ये लिखने का काम कर रहा है और इस समय इसकी ब्रेन को मॉनिटर किया जा रहा है, तो इस समय ये पता चलेगा कि व्हेन अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन राइटिंग व्हाट इज द लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. मतलब ब्रेन के कहाँ कहाँ और किस किस एरियाज में ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हमें ये पता चलेगा एंड वी वुड बी एबल टू कंक्लूड कि जब एक इंसान लर्निंग की पोजीशन में होता है तो ब्रेन के कौन से एरियाज एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. तो ये फंक्शनल MRI में इंडिविजुअल को इन्वॉल्व किया जाता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एंड देन हिज ब्रेन एक्टिविटी एंड द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इज बीइंग मॉनिटर्ड. अब ये ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें नॉर्मल ब्रेन की ये फंक्शनिंग होती है और जो ADHD का ब्रेन होता है उसकी ये फंक्शनिंग होती है. PTSD में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नॉर्मल ब्रेन इस टाइप से रिएक्ट करता है, PTSD में ऑक्सीजन कंजम्पशन ये होता है. बाइपोलर डिसऑर्डर, नॉर्मल ब्रेन इस टाइप से रिस्पॉन्ड करता है, बाइपोलर ब्रेन के ऑक्सीजन कंजम्पशन के एरियाज ये होते हैं एंड दे आर क्वाइट डिफरेंट. डिप्रेशन
This is the normal brain while we are facing depression, and this is the depressed brain. इसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन देखिए बहुत ही कम है as compared to the normal brain. So functional MRI helps an individual to know the specific areas of brain which are responsible in different type of diseases and different type of activities. And the fourth mapping technique is SQUID, superconducting quantum interference device. It produces images based on its ability to detect tiny changes in magnetic fields in the brain. When neurons fire, they create an electric current. Electric currents in turn give rise to magnetic fields that the squid interprets as neural activity, and it is used to map various brain functions. मतलब इससे भी हम functions को study कर रहे हैं, but the procedure is entirely different. इसमें जो neurons activate होते हैं, तो जब सबको पता है कि न्यूरॉन्स जब एक्टिवेट होते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो स्क्विड इन्हीं इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू उन फंक्शंस को जनरेट करता है और प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट फंक्शंस आर हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. Fifth is PET scan, positron emission tomography. It is an imaging technique that detects the activity of the brain by measuring glucose utilization or blood flow. It scans to see what's happening in the brain as it performs various functions. PET scan accomplishes this by measuring blood flow in various neural areas or by gauging the rate at which glucose, द ब्रेन्स फ्यूल, इज मेटाबोलाइज. मतलब ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में ग्लूकोज के लेवल का कंजम्पशन कितना है. ग्लूकोज इज द ब्रेन्स फ्यूल, जिसे हम ब्रेन कैसे काम करता है बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज लेवल. तो इस ग्लूकोज का लेवल क्या है एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और ये हमें पेट स्कैन से पता चलता है. और इसकी जो प्रोसेस होती है उसमें इंडिविजुअल्स आर इंजेक्टेड with small amounts of harmless radioactive isotopes attached to either water or glucose molecule. Blood flow is greatest in the most active area of the brain. Similarly, the most active cells taking in the greatest amount of glucose, and the brighter the area, the more the activity level. मतलब ब्लड का फ्लो जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब उन एरियाज में एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही है. और दूसरा इसका की पॉइंट ये है कि जो एरियाज जितने ब्राइटर होंगे उन एरियाज में एक्टिविटी का लेवल उतना ज्यादा हाई होगा. तो ये आपके डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स थी. अब इसमें ये देखिए कंट्रोल सब्जेक्ट, ये अल्जाइमर्स पेशेंट का ब्रेन की एक्टिविटी का लेवल ऐसा होता है, फुटबॉल प्लेयर की ब्रेन का एक्टिविटी का लेवल, और मिलिट्री पर्सनल के ब्रेन का एक्टिविटी लेवल. और जबकि जो कंट्रोल सब्जेक्ट है नॉर्मल जो इंडिविजुअल है जिसको अल्जाइमर भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं है, मिलिट्री पर्सनल भी नहीं है, उसका ब्रेन की एक्टिविटी का लेवल इस टाइप से होगा. इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट. So these are different ways of these are different techniques of brain mapping. और ये हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मेजर करना है तो वी विल गो फॉर EEG. अगर हमें स्ट्रक्चर्स को देखना है तो हम CT स्कैन करवा सकते हैं या MRI करा सकते हैं. रेडिएशन का अगर हमें ज़्यादा खतरा है तो हम MRI करवाते हैं. और अगर हमें बोन स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करना है तो हम CT स्कैन में जाते हैं. तो अगर हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी इधर गो फॉर CT स्कैन और वी गो फॉर MRI. उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे फंक्शनल MRI हो गया, पेट हो गया एंड स्क्विड हो गया. और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, डिफरेंट मोड्स के थ्रू इन सब चीज़ों का कि ब्रेन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, जब हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो ब्रेन के कौन से हमारे एरियाज ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन चीज़ों के बारे में प्रिडिक्शंस करते हैं. तो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू, and thank you.